we are talking about plosives. When we talk about plosives, so I have told you the definition. What is the definition? That plosives are those consonants in which the airflow is momentarily stopped and then suddenly released. It gives an impression of suddenness to the consonants, and we say there are 6 plosives in English language. So when we talk about plosives, so actually one articulator or more than one articulator, they come together, and what happens, they form a structure that allows no air to escape from the vocal tract. The structure is then total. That is why we say that there is a complete blockage in the air tract when we try to speak plosives. आपका जो वोकल ट्रैक है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर जो एयर है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी वोकल ट्रैक के अंदर. दिस वुड बी द फर्स्ट व्हाट वी कॉल step, okay, or first characteristic. And after that, after this structure has been formed, the air has been compressed behind it, it is released. That is, air is allowed to escape. अब पहले तो आपके वोकल ट्रैक में एयर क्या होगी, कंप्रेस होगी, इकट्ठी होगी, एंड आफ्टर दैट व्हाट वुड बी द second phase or second characteristic of plosive, that the air would be released. And if the air behind the structure is still under pressure when the plosive is released, it is probable that the escape of air will produce noise loud enough to be heard. This noise is called explosion. Okay, so आपने explosion से relate जो है इसको करना है कि आपके जब वोकल ट्रैक से वो जब एयर सडन रिलीज होगी, क्योंकि एयर का जो प्रेशर है दैट हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड योर वोकल ट्रैक, वो जो सडन रिलीज है दैट वुड प्रोड्यूस a sort of explosion. Okay, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, plosives कहते हैं. Okay, means actually whenever you are producing them, so they have this particular quality, and then they may be voicing during part or all of the plosive articulation. अब वॉइसिंग के बारे में मैं लेटर आपको बताऊंगा कि वॉइसिंग क्या है. तो जब भी प्लोसिव्स को आर्टिकुलेट किया जाता है तो उसमें सर्टन काइंड की वॉइसिंग होती है. सारे प्लोसिव्स में तो नहीं, लेकिन जो है वो कुछ प्लोसिव्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें वॉइसिंग होती है. सो to give what we say a complete description of plosive consonant, we must describe what happens at each of the 4 phases in its production. Okay, अब जो जो ये जो 4 phases हैं उसमें से जो पहला फेज है उसको हम क्या कहेंगे, फिर उसको क्या नेम देंगे, क्लोजर फेज. ओके, जिसमें मुकम्मल तौर पे चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं. सेकेंड जो फेज है उसको हम कहते हैं होल्ड फेज, जिसमें हम अपनी सांस को क्या कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं. तीसरे फेज को हम कहेंगे रिलीज फेज, जिसमें हम अपनी एयर को अलाउ करते हैं कि वो हमारे माउथ में से क्या करे, स्केप करे. और जो फोर्थ फेज है उसको हम दैट हैपन्स आफ्टर द थर्ड फेज, एंड दैट इज कॉल्ड पोस्ट release phase. Okay, so basically there would be 4 phases whenever we are producing whenever we are producing a plosive. Number 1, closure phase. Second one, hold phase. Third one, release phase. And the fourth one, post release phase. Okay, so English में कितने plosives हैं? There are 6 plosives. 6 plosives. Plosive consonants you can also say to them, and they are in combination. अगर आप उनको बोलें तो that is आप अपने सामने चार्ट पे भी देख सकते हैं. That is प and ठ, ख, ब, ड, ग. Okay, these are 6 plosives. एंड इसके आप एक तरह से पेयर्स बना लेंगे. पेयर्स बनाएंगे हम क्योंकि उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपने जब भी कॉन्सोनेंट्स की बात करनी है, इन कॉन्सोनेंट्स वी हैव 2 थिंग्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. नंबर 1, that is called place of articulation, manner of articulation, and the second one, that is the place of articulation. And you must know what is the difference between the two, manner of articulation and place of articulation. अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, व्हाट इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड व्हाट इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन.
manner of articulation, the way these sounds, these consonant sounds are produced. Okay, manner क्या है? The way these consonant sounds are produced. Like हमने वे तो बता दिया, वे क्या है कि एयर, उसमें हमने फेजेस बता दिए कि हमारे पास क्लोजर जो है वो फेज है, उसके पास होल्ड फेज है हमारे पास, उसके पास रिलीज फेज है, कि हम ये उसका मैनर है कि सबसे पहले हम एयर को, एयर वोकल ट्रैक में एयर को क्या करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम एयर को होल्ड रखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। और ये जो जब हम रिलीज करते हैं एयर को, तो एक सर्टन प्रेशर एयर का क्योंकि प्रोड्यूस हो चुका होता है, तो मुंह से निकलते हुए एक प्लोजन होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्लोजन। इसी वजह से हमको अब ये सारे के सारे जो आपके पास 6 जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन 6 कॉन्सोनेंट्स को हम मैनर के हवाले से क्या कहते हैं, प्लोसिव्स कहते हैं। मैनर के हवाले से हम प्लोसिव्स कहते हैं। क्यों मैनर के हवाले से हम प्लोसिव्स कहते हैं? क्योंकि इनके प्रोड्यूस होने का जो वे है वो एक जैसा है सब के सब का। अब इनमें से किसी भी एक साउंड को जब भी आप प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो इनका मैनर एक ही जैसा होगा। ओके, इस सारों के सारों में जो एयर पैसेज है वो कंप्लीट ब्लॉक होगा, और फिर उसमें आप होल्ड करके रखेंगे उस एयर पैसेज को, और फिर आप सडन रिलीज करेंगे। आप किसी को भी प्रोड्यूस करें, लाइक इफ यू जस्ट प्रोड्यूस था, ओके, तो एक्चुअली आप उस एयर प्रेशर को अपने अपने वोकल ट्रैक में बिल्ड करते हैं एंड देन यू रिलीज इट। तो ये सारे के सारे क्योंकि एक ही मैनर में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो इनका मैनर हम क्या कहेंगे, बाय मैनर दे आर प्लोसिव्स। बाय मैनर दे आर प्लोसिव्स। इनका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है इन कॉन्सोनेंट्स का, इस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की वजह से हम क्या कहते हैं, इनको प्लोसिव कहते हैं। और 6 के 6 एक ही मैनर में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। इसी वजह से हमने ग्रेटर जो इनकी डिवीजन कर ली, इनको हमने क्या कह दिया, प्लोसिव्स कह दिया। ओके, जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। If you have any confusion in manner of articulation or place of articulation, you can put question. So when we talk about place of articulation, so place of articulation means from where they are produced, okay, or how, okay, means from where they are produced means their particular place, okay। वो how की हमने जो है ना वो बात कर दी उसमें मैनर में, और ये जो है where कि कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो एक्चुअली जब हम उस प्लेस को डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, हम इसको प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। ओके, अगर हम इसके पेयर बनाएं, तो जैसे कि इन द बिगनिंग यू हैव पुट क्वेश्चन कि वो बाइलेबियल और अल्वियोलर और व्हाट इज दैट। ओके, तो वो क्या मैंने आपको बताया था कि दैट इज बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब प्लेस क्या है, फ एंड ब, फ एंड ब, इसको जब प्रोड्यूस करते हो तो योर टू लिप्स दे आर ज्वाइंट टुगेदर। okay, your two lips they are joined together, and when two lips are joined together, that particular sound or that particular place, okay, is called that particular place of articulation is called bilabial, because bi means two, so two lips are together, so that is why that is called bilabial. जो फ and ब हो जाएंगे, they would be bilabial because here the lips are pressed together. And the second group that we have here, that is th and d. Th and d. The tongue blade is pressed against the alveolar ridge. Okay, जो articulators मैंने आपको बताया था, whenever uh, you are going to talk about, whenever you talk about plosives, so actually those plosives we talk about the articulators की जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वो आपको याद होंगी, तो अल्टीमेटली आप उनको डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, जो आपकी टंग ब्लेड है, टिप ऑफ द टंग है, वो किसके साथ प्रेस होता है, जाके एल्वियोलर रिज के साथ होता है। इसी वजह से इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलर कहते हैं। इन दोनों की प्लेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्वियोला। और इसमें आपको जो मैं लेक्चर सेंड करूंगा उसमें भी आप देख लेंगे कि किस तरह से जो टंग है वो लिप्स किस तरह से आप उसमें मैच कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो टिप ऑफ द टंग है, जो ब्लेड ऑफ द टंग है, वो कैसे जाके एल्वियोलर रिज के साथ टच कर रहा है। तो ये एक एक अपने प्लेस के हिसाब से क्या हो गया, एक अपने प्लेस के हिसाब से हो गया बाइलेबियल,
और सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास ठ एंड ड, ये क्या हो गया, दैट इज alveolar. Okay, and then we have another group. Okay, so that is wheeler. Okay, wheeler, ख and g, क्योंकि इसमें जो आपकी टंग है उसका जो बैक पार्ट है वो ऊपर बुलंद होता है, और वो आपके युवुला के आगे वाला जो हिस्सा है उसके साथ वो क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है. इस वजह से वो जो वीलम, जी वीलम, वीलम, ठीक है, वीलम के साथ क्या करता है, टच करता है. सो दैट साउंड इज कॉल्ड व्हीलर साउंड. ओके, व्हीलर कॉन्सोनेंट. और उसकी जो ख एंड ग की जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है दैट इज व्हीलम. तो इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, व्हीलर उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं. ओके, सो अगर हम आप इसको फिर पेयर में बना के डिस्क्रिप्शन भी आप इनकी देंगे, जिस तरह से आप वॉल साउंड की डिस्क्रिप्शन आप देते हैं साथ के, वॉल साउंड इसकी यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, क्लोज है, फ्रंट है, इसी तरह से जो आप पेयर बनाएंगे उसमें आपने उनकी डिस्क्रिप्शन भी देनी है. तो फर्स्ट हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, जिसमें आपके पास क्या है, दैट इज फ एंड ब. Okay, so p and b are called bilabial. Bilabial means they are means you will give this description. Okay, so in bilabials two lips they are joined together. So p and b are called bilabial. Okay, so bilabial sounds because both lips are used while producing them. The air is stopped by the lips and then suddenly released. Okay, so the air is stopped by the lips. Okay, आपके जो होंठ है वो उस, अब यहाँ पे जो ब्लॉकेज क्रिएट करने वाला जो आपके पास आर्टिकुलेटर्स हैं वो क्या हैं, वो आपके लिप्स हैं. तो वो कंप्लीट ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं. दैट इज व्हाई दीज साउंड्स दे आर कॉल्ड बाइलेबियल साउंड्स. एंड देन वी हैव द सेकंड ग्रुप दैट इज थ एंड ड. Th and d are produced by tongue blade pressing against the alveolar ridge to stop the airflow. अब यहाँ पर जो टंग ब्लेड है वो alveolar ridge के साथ जाके जुड़ जाता है और वो एयर को कंप्लीट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. The airflow is then suddenly released to produce the sound. These consonants are therefore called alveolar consonants. These consonants are called alveolar consonants. In this way you will give the description of different plosives. So if you are talking about the first group, then you will give their description. If you are talking about the second group, you will give their description. In whatever you know about them, you will describe. Okay, you will talk about their manner of articulation, like as you have decided these are plosives, and plosives have this particular manner. And then you will talk about their place, and in their place you will discuss that what kind of the articulations they are joined together and how you produce these sounds. And then we have another group that is k and g. Okay, so k and g are called velum consonants. Velum consonants because the tongue is pressed against the velum to stop the airflow. Okay, अब यहाँ पे जो इनके सारे के सारे आर्टिकुलेटर्स काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट है, इस वजह से हमने उनके प्लेसेस को डिफरेंट डिक्लेयर कर दिया. अगर सारे के सारे आर्टिकुलेटर्स एक ही तरह का वो एक ही जगह से हो रहे होते, ऑब्वियसली सारे जो कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस, तो हम उनको उनकी प्लेस एक ही डिक्लेयर करते. अब मैनर उनका एक है सबका, लेकिन उनकी प्लेसेस डिफरेंट है. एयर ब्लॉकेज सब में हो रही है, किसी जगह पे लिप्स एयर ब्लॉक कर रहे हैं, किसी जगह पे टीथ और टंग एयर ब्लॉक कर रहे हैं, किसी जगह पे जो आपका विलम है वो एयर को ब्लॉक कर रहा है. The airflow is suddenly released to produce the sound. Okay, so all these six plosives can occur in the beginning of a word. We call it initial position. Okay, and it can also occur at the means between other sounds. Okay, between other sounds, that we would call middle position. And it can also occur at the end of the word. We call it final position. तो ये जो आपके पास प्लोसिव्स हैं, इनमें से कोई भी एक प्लोसिव साउंड को आप ले लें तो वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड में भी हो सकती है, मींस द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड, एंड इट कैन बी in between two vowel sounds in the middle, or it can be at the end of a word.
तो वो क्या होगी, उसकी कौन सी पोजीशन होगी, दैट वुड बी द फाइनल पोजीशन। फर्स्ट विल टॉक अबाउट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में ये किस तरह से बोले जाते हैं और उसमें एयर का प्रेशर किस तरह से होता है, क्योंकि इनका एयर का प्रेशर डिफरेंट होगा। वैसे तो हमने प्लोसिव्स को जब आप इंडिविजुअल साउंड को डिक्लेयर करेंगे तो एयर का प्रेशर स्ट्रांग होगा, लेकिन इनके पोजीशन बदलने के साथ साथ एयर का प्रेशर क्या होता जाएगा, वो भी बदलेगा। ना सिर्फ एयर का प्रेशर बदलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि एक साउंड जो है वो आपको पावरफुल स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इन द बिगनिंग, तो हो सकता है कि मिडल और एंड पोजीशन पे वो इतनी स्ट्रॉन्ग आपको नजर ना आए, बल्कि वो वीक नजर, साउंड सेम होगी लेकिन क्योंकि उसकी पोजीशन वर्ड में बदल गई है तो इस वजह से उसको जब हम बोल रहे हैं तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि वो इनिशियल पोजीशन में। तो फर्स्ट विल डिस्कस इनिशियल पोजीशन। When these six plosives occur at the beginning of a word, their articulation takes place more silently, less prominently. Okay? जब वो beginning में होते हैं तो their articulation that takes place more silently and less prominently. During hold phase, जो phase हम बात की, when the air is suppressed, there is no voicing in p and b. Rather, there is an aspiration sound like ha. Okay. So in b, d, g, जो नीचे वाला आपके पास ग्रुप है, there is very little voicing and it begins just before the release and does not contain a sound. अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप हाँ मीन एक साउंड की मैं एग्जांपल दे दूंगा, बाकी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि जो आपकी साउंड है जब अब ये स्टार्ट में होगी तो इसमें हिसिंग साउंड आएगी आपके पास, एच, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्पिरेशन कहते हैं। एस्पिरेटेड साउंड होती हैं, लाइक वी you may have heard from the English people speaking like Pakistan. Okay, so there's Pakistan, so we say Pakistan per. ओके और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान। उसमें दे जस्ट, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन में होती है तो उसमें एस्पिरेशन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, देयर इज एस्पिरेशन। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें अगर एस्पिरेशन ऐड हो या ना हो, वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता है। ओके, आई मीन इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज कि जहाँ पर एस्पिरेशन हो या ना हो, इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल व्हेन दे स्पीक दे डू नॉट ऐड एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन ऐड नहीं भी होती तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये पेन बोल रहा है या फैन बोल रहा है। ओके, सो पेन और फैन, ओके, दे मीन द सेम थिंग। लेकिन उर्दू में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उर्दू में जब आप देखेंगे तो उसमें जब एस्पिरेशन ऐड होती है तो मीनिंग बदल जाता है। ओके, तो इसी वजह से अब उर्दू में एक है बाल, ओके, उसमें बा, अलिफ और लाम, ओके, वो है बाल। लेकिन अगर उसके साथ आप एस्पिरेशन ऐड कर देंगे तो बाल बन जाएगा, बाल, देख बाल। ओके, तो अब बाल जो है उसकी मीनिंग डिफरेंट है और बाल के मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह से भाई और बाई, ओके, तो नॉन बाई होता है और भाई होता है। ओके, उसमें मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पे एस्पिरेशन ऐड हो या ना हो उसकी मीनिंग डिफरेंट नहीं होते। अब आपने प्लोसिव्स के जो ग्रुप बनाए ना, ग्रुप फ एंड ब, ट एंड ड, ख एंड ग, ये जो आपके पास ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में जो ऊपर वाला है वो यूजुअली इनिशियल पोजीशन में क्या होता है, स्पिरिटेड होता है, लेकिन नीचे वाला किसी भी पोजीशन में स्पिरिटेड नहीं होता है। फ एंड ब जो है दैट इज नॉट एस्पिरेटेड। क्यों एस्पिरेटेड नहीं है, क्योंकि उसमें हा साउंड ऐड ही नहीं हो रही है, हिसिंग साउंड ऐड ही नहीं हो रही है उसके अंदर। लेकिन जो जी नहीं, उसमें तो ऐड हो रही है ना, वो तो बता रहा हूँ ना आपको, एग्जांपल दे दी उसकी मैंने। ओके, जो नीचे वाली साउंड है, सेकंड जो साउंड है फ, फ और प, वो तो दोनों ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि वर्ड में किस पोजीशन पे वो अकर हो रहा है। लेकिन जो ब है, ब जैसे बैट, ओके, तो ब जो है, ब में एस्पिरेशन नहीं होगी, चाहे वो इनिशियल में हो या आगे किसी भी पोजीशन में, उसमें एस्पिरेशन है ही नहीं, दैट कैन नॉट बी एडेड। ओके, उसमें है ही नहीं। पहला जो है फ जो है वो क्या है, एस्पिरेटेड है, लेकिन नीचे वाला एस्पिरेटेड नहीं है, नॉन एस्पिरेटेड है। ओके, इसी तरह से अगले ग्रुप, जी आप इसको ऑब्वियसली जब आप इनिशियल पोजीशन में आप इसको लिखेंगे तो उसमें किसी भी वर्ड में इनिशियल पोजीशन में आएगा तो उसमें इंस्पिरेशन तो होगी। उसमें आपने डिक्शनरीज में अगर आप इसमें किसी भी फोनोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन को आपने चेक किया हो तो डिक्शनरी में एक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का सिंबल दिया होता है, साउंड दिया होता है, उसके ऊपर एक बिल्कुल स्मॉल सा एच दिया होता है, एच।
वो जो एच है वो बता रहा होता है कि ये यहाँ पर इस वर्ड में या इस पोजीशन में ये साउंड एस्पिरेटेड है। ओके, तो आज भी आप किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड या लॉन्गमैन या उसको आप चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपको वो एस्पिरेटेड की समझ आ जाएगी कि कहाँ पर जब एक वर्ड जो है वो बोला जा रहा होता है जब, तो उसमें एस्पिरेटेड जब हो तो उसमें एच साउंड क्या होती है, ऐड होती है। लेकिन ये जो नीचे वाला ग्रुप है ना, ब ड ग, इसमें कोई एस्पिरेशन नहीं है, आमतौर पर इसमें एस्पिरेशन ऐड नहीं होती। और ऊपर वाले ग्रुप को जो हमारे पास है उसमें है थ, ठ एंड ख। ओके, या प, ट और क, ये जो है इनको हम अनवॉइस्ड कहते हैं या वॉइसलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइसलेस। वॉइसलेस क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग देम, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नो वाइब्रेशन इन आवर वोकल कार्ड्स। लेकिन जो सेकंड वाला जो ग्रुप है आपके पास, उसमें जब आप वॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उनको प्रोड्यूस करते हुए हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं, वी फील वाइब्रेशन देयर। what kind of vibration there is, like you just speak b, b, and you feel that you just feel that something is vibrating inside your throat. Okay, so b, b। हो सकता है कि इंडिविजुअल साउंड जब हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम उस वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, डिस्टिंक्टली फील कर सकते हैं। लेकिन जब वो वर्ड में अक्कर होता है तो वहां पर जो वॉइसिंग है वो बहुत कम हो जाती है, वेरी लिटिल वॉइसिंग इज देयर। इवन के वो इनिशियल पोजीशन में भी आ रहा हो, जैसे वही कहते हैं बैट। ओके, बैट, तो वहां पर बैट हम बोलते हैं जब, तो उसमें आप ऐसे ब साउंड सेपरेट करके बोलें तो आपको जो वाइब्रेशन है वो फील भी होती है, एंड यू कैन जस्ट चेक दैट वाइब्रेशन बाय पुटिंग योर फिंगर ऑन टू योर थ्रॉट, ओके, और ऑन टू योर वोकल कार्ड। ओके, बाहर की जो आपके गले की हड्डी है वहां पे अगर आप पुट करके देखें तो यू विल फील देयर इज वाइब्रेशन। लेकिन वो जब वर्ड में अक्कर होगा वो साउंड, तो हो सकता है कि उसमें उस तरह की वाइब्रेशन फील ना हो, वॉइसिंग फील ना हो। लेकिन वैसे हम इसको वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स या वॉइस्ड प्लोसिव्स ही कहते हैं। तो ऊपर वाला जो ग्रुप है आपका, अब हमने पेयर्स बनाए थे ना, फ एंड ब, ठ एंड ड, ख एंड ग, ये हमारे पास पेयर्स हैं। जब पेयर हमने बना लिए तो पेयर का ऊपर वाला जो है वो अनवॉइस्ड है और नीचे वाला क्या है, वॉइस्ड है। ऊपर वाला वॉइसलेस है और नीचे वाला वॉइस है। इसी तरह से जो है वो ऊपर वाली जो लाइन पूरी है वो क्या हो जाएगी, वो वॉइसलेस हो जाएगी, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो अनवॉइस्ड, सॉरी वॉइस्ड हो जाएगा। ऊपर वाला वॉइसलेस और नीचे वाला वॉइस्ड हो जाएगा। ओके, तो ये मिडिल पोजीशन में भी आ सकते हैं ये साउंड्स। सो इन द मिडिल पोजीशन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ थ, थ, ख, ब, ड, ग depends upon the following symbols, following and preceding syllables, whether they are stressed or not. Okay, so अब जब ये मिडिल पोजीशन में आते हैं तो मिडिल पोजीशन में आपने ये देखना होता है कि ये इनकी वॉइस है या नहीं है, और इनकी जो एस्पिरेशन है या नहीं है वो डिपेंड करती है इर्द गिर्द के सिंबल्स के ऊपर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्लोसिव्स मिडिल में आते हैं तो इनकी कोई इंस्पिरेशन उसके अंदर नहीं पाई जाती। ओके, वो डायरेक्ट, जैसे कि हम कहते हैं ना एट, एट। ओके, तो इसी तरह से अपीयर, अपीयर। ओके, तो अपीयर, अपीयर हम नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अपीयर। प साउंड उसमें इनकी आ रही होती है, उसमें एस्पिरेशन नहीं होती। तो इसी तरह से वॉइसिंग भी उनमें क्या होती है, कम होती है। ओके, अबाउट, अबाउट, अबाउट। ओके, सो वहां पर ब जो साउंड आ रही है उसमें वॉइसिंग बहुत ही वीक किस्म की वॉइसिंग आपको, या लिटिल वॉइसिंग आपको वहां पर क्या है, नजर आएगी। और इसी तरह से जो फाइनल पोजीशन है आपके पास, इनमें जो फाइनल पोजीशन है उसमें आपके पास आ जाएगा इन द फाइनल पोजीशन ब, ड, ग normally have very little voicing. Okay, ये जो अभी very little voicing, and थ, ठ, ख और of course voiceless। वो तो पहले वॉइसलेस हैं, फ, ठ और ख, ये तो पहले वॉइसलेस हैं। और जो हमारे पास वॉइस्ड हैं वो अगर फाइनल पोजीशन पे आएंगे तो उनकी वॉइसिंग अगर होगी तो क्या होगी, वेरी लिटिल वॉइसिंग वुड बी देयर।
at the final position, the plosive sound of these 6 consonants is very weak and not quite audible. Okay, वो सारे 6 के 6 जो plosives हैं, इनका जो articulation है वो बहुत weak सी आपको नजर आएगी. Okay, कोई भी आप word बोलें तो वो अगर आप like you are just speaking stop, okay, उसमें जो प साउंड है वो ना होने के बराबर सुनाई देता है. ओके, तो दैट इज व्हाट वी से कि जब वो फाइनल पोजीशन में कोई भी प्लोसिव जब फाइनल पोजीशन में आता है तो वो बहुत वीक हो जाता है उसको. दैट इज वाई कि जब हमने फोनोलॉजी की बात की थी तो हमने कहा था कि हम ना सिर्फ इंडिविजुअल साउंड्स पर फोकस करते हैं बल्कि हम ये भी देखते हैं कि जब एक साउंड एक एनवायरनमेंट में आती हैं तो उनके इर्द गिर्द की जो साउंड्स हैं उन पर किस तरह से असर करती हैं, उस पर इफेक्ट कैसे होता है. सो दैट इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. सो इस तरह से आपने इसको क्या करना है देखना है. और इसमें एक और भी आपने जिस चीज़ को माइंड में रखना है उसको हम कहते हैं फोर्टिस और लीनस. फोर्टिस और लीनस. फोर्टिस FORTIS फोर्टिस और LENIS लीनस. So fortis means strong and lenis means weak. Okay, some linguists believe that p, t, k are produced with more force than b, d, g. Okay, अब ये जो हमने बना लिए उनके ग्रुप जो हमने बना लिए तो उन ग्रुप्स में आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला जो ग्रुप है एक तो हमने बनाया ना पेयर्स बनाए. पेयर नहीं, जो ऊपर वाला जो ग्रुप है हम इनके पेयर कैसे है फ एंड ब, ठ एंड ड, ख एंड ग. लेकिन फ, ठ एंड ख जी ऊपर जी तीनों में जो फर्स्ट वाला है उसको हम फोर्टिस कहते हैं. क्यों फोर्टिस उनको कहते हैं? क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वैसे तो सारे प्लोसिव्स हैं लेकिन उनको प्रोड्यूस करते हुए जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होती है. और जो सेकंड नीचे वाला जो ग्रुप है उसमें जो फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है. इसी वजह से ऊपर वाले ग्रुप को हम फोर्टिस कहते हैं और नीचे वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लीनस कहते हैं. ओके, सो अगर वो उसमें वो स्ट्रांगनेस आपको नजर आ रही है तो यू कैन जस्ट कॉल देम फोर्टिस, और वो वीक है अगर तो वो क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड लीनस. ओके, और इनका जो है वो आप फिर एक चार्ट बना लेंगे. ओके, एंड दैट चार्ट वुड बी कि जिसमें आपने लिखना है प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ इंग्लिश प्लोसिव्स. तो उसमें आपने लिख देना है बाइलेबियल, एल्वियोलर एंड वीलर. ओके, जो फ एंड ब है वो ऊपर नीचे, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा. ओके, और वो जो आपके पास लेक्चर आएगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें आपके पास चार्ट बना होगा, और मेरे पास जो अपने नोट्स हैं उसमें भी वो चार्ट हैं वो बना हुआ है. तो उसमें आप देख लेंगे, वो चार्ट आपको क्लियर भी हो जाएगा और उस चार्ट को आप अपने पास बना के भी रख लेंगे. प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आप लिखेंगे और उसके बाद एक जो पेयर है उसको आप लिखेंगे था एंड ब, तो उसके ऊपर लिख देंगे बाइलेबियल. अगले वाला पेयर लिखेंगे था एंड ड, उसके ऊपर लिख देंगे एल्वियोलर. ओके, मीन्स के इट मीन्स कि यू आर कंक्लूडिंग प्लोसिव्स. और कंक्लूजन में आप एक तरह का ये डायग्राम या चार्ट आपके पास होगा जो, या टेबल आपके पास होगा कि जिसको आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. ओके, तो एनी क्वेश्चन? यस, आई डोंट नो कौन से पेज पे है. आई एम जस्ट टेलिंग यू. ये आपको लेक्चर जो मैं सेंड करूंगा मेरी स्क्रीन पे आ रहा है कंप्यूटर की, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड यू कैन लुक एट दैट. ओके, आई विल शेयर विद यू दिस लेक्चर. एंड देन वी हैव another kind of consonants. Okay, so another kind of consonants that is called fricatives. Okay, fricatives. Okay, आपके पास जो है वो fricatives जो है वो आपके पास उस चार्ट पे सामने अवेलेबल भी होगा जो आपके पास है. ओके, अब फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आप क्या करेंगे. ओके, यू विल से दैट
फ्रिकेटिव्स आर दोज कॉन्सोनेंट्स, पहले तो आप डिफाइन करेंगे, लाइक यू हैव डिफाइंड प्लॉसिव्स। अब फ्रिकेटिव्स क्या है, ये मैनर है, ये आपने याद रखना है। आगे प्लेसेस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फ्रिकेटिव दैट इज द मैनर, ओके। सो फ्रिक्शन से है ना फ्रिकेटिव, फ्रिक्शन, फ्रिकेटिव्स, ओके। So fricatives are those consonants in which the air escapes through small passage and makes a hissing sound. Okay, fricatives are continuant consonants, which means that one can continue them without stopping as long as one has enough air in the lungs. So that is definition. The air that is compressed by pressure from the lungs escapes through the narrow gap with audible friction. तो ये हम कहते हैं कि these are fricatives। कि अब यहाँ पर भी क्या होगी, एयर ब्लॉकेज होगी, जैसे कि प्लोसिव्स में एयर ब्लॉकेज है। लेकिन इस ब्लॉकेज में और प्लोसिव्स वाली ब्लॉकेज में डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर द एयर escapes थ्रू नैरो और स्मॉल पैसेजेस, कि वो एयर को आप जब उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो एयर जो है वो क्या होगी, वो एयर जो है वो रुक रही होगी, लेकिन इसके बावजूद वो escape करेगी, स्मॉल पैसेजेस से escape करेगी, और उस escape की वजह से वो जो हिसिंग साउंड है उसमें वो क्या होगी, क्रिएट होगी, हिसिंग साउंड क्रिएट होगी। और उस हिसिंग साउंड की वजह से वो, क्योंकि एक तरह की एक, अब जब एयर को जब आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एयर जो है वो क्या कर रही है, वो आपके आपके वोकल ट्रैक से निकल रही है, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, फ्रिकेटिव्स कहते हैं। इंटरप्शन इसमें होती है, और इस इंटरप्शन में जो है वो एयर जो लंग से प्रोड्यूस होती है वो मुकम्मल तौर पे ब्लॉक नहीं होती, बल्कि क्या करती है, एस्केप कर जाती है। सो इनकी जो means you can demonstrate the importance of narrow passage from the air in the following ways. Make a long hissing sound and gradually lower your tongue so that it is no longer close to the roof of the mouth. The hissing sound will stop as the air passage gets larger. Okay, तो आप हिसिंग साउंड कब प्रोड्यूस हो, जब तक प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक ये आपका जो वोकल ट्रैक है वो किसी न किसी तरह से ब्लॉक रहेगा, और हिसिंग साउंड स्टॉप हो जाएगी अगर आप उस ब्लॉकेज को मुकम्मल तौर पे क्या कर दें, ओपन कर दें। लाइक अगर आप ये साउंड प्रोड्यूस करें ना, तो अगर आप अपनी टंग को हटा दें, नीचे कर दें, तो वो ख़त्म हो जाएगी आवाज़। लेकिन अगर आप उसको वहाँ पे रखें तो ये आवाज़ प्रोड्यूस होती रहेगी उस वक्त तक जब तक आपकी जो सांस है वो उसका जो है वो एयर जो है वो आपके लंग्स में जब तक मौजूद रहेगी वो साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी, लाइक ओके। सो ये हिसिंग साउंड आपको सुनाई जो है वो इसमें देती है। ओके, तो इसके साथ एक और ग्रुप है जो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एफ्रिकेटिव्स कहते हैं, वो सेकंड ग्रुप है। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे फ्रिकेटिव्स ऑफ इंग्लिश को। तो हमारे पास फ्रिकेटिव्स बेसिकली कितने हैं इंग्लिश में, देयर आर 9 fricatives in English. Okay, how many fricatives are there? 9 fricatives, 9 fricatives are there in English. और इसमें ये सारे के सारे 9 के 9 अपने आर्टिकुलेशन के एतबार से सारे के सारे क्या हैं, फ्रिकेटिव्स हैं, क्योंकि इनका मैनर एक ही है, लेकिन ये इनकी प्लेसेस जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। इन सब की प्लेसेस डिफरेंट है, अलग अलग है। तो उसी तरह से हम इनको पेयर में बना लेंगे, इट्स क्वाइट ईजी। पेयर में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और इन पेयर में इनको स्टडी करना भी मुश्किल नहीं है। तो पेयर बनाएंगे, तो पहला जो पेयर बनाएंगे हम बनाएंगे एंड कुछ लोग इसको फ एंड व बोलते हैं, ओके। लेकिन आमतौर पे अगर आप इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश की जो चार्ट है उसे आप सुने तो दे स्पोकन लाइक दिस एंड ओके, ये ऐसे जो जिसको आप इनके यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने वो फ्रिकेटिव्स की साउंड जो चार्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो आपकी ये दोनों साउंड्स आ रही हैं सामने आपके हैं। इनको आप जैसे कि आप बोलते हैं फैन एंड वैन,
फैन एंड वैन, जो इनिशियल साउंड है उसको हम देख रहे हैं। और ये दे आर क्वाइट इजी, क्योंकि उर्दू में भी ऐसा इससे मिलती जुलती साउंड हमारे पास है। जो फर्स्ट आपके पास पेयर बना है उसमें आप देखें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें आपके जो अपर टीथ हैं वो किसके साथ आके इंटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लोअर लिप के साथ आके अटैच हो रहे हैं। अपर टीथ लोअर लिप के साथ आके अटैच हो रहा है। तो अब इसमें आपका एक लिप अवेलेबल, एक लिप जो है वो क्या है, वो उसमें इंटेक्ट है, और दूसरा जो है वो आपके आपके जो टीथ हैं वो इंटेक्ट है। इसी वजह से इस साउंड को हम क्या कहते हैं, दीज साउंड दे आर कॉल्ड लेबियो डेंटल। दैट इज कॉल्ड लेबियो डेंटल। अब उसमें क्योंकि दो प्लोसिव में, जो फर्स्ट प्लोसिव थे उसमें आपके टू लिप्स दे वर जॉइंड टुगेदर, एंड दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड बाइलेबियल। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक एक लिप तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, टीथ है के साथ अवेलेबल। तो टीथ और लिप जब आपस में मिलते हैं तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं, लेबियो डेंटल। वी कॉल इट लेबियो डेंटल। तो these are and these are labiodental fricatives, which means that the lower lip is intact with upper teeth. Lower lip is intact with upper teeth. The fricative is stronger in but is scarcely audible in okay. सो और इसमें वही डिवीजन अब करेंगे, ऊपर वाला फोर्टिस है, नीचे वाला लीनस है, ऊपर वाला वॉइसलेस है, नीचे वाला क्या है, वॉइस है। जब आप प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में इसे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप तक आवाज़ भी उसकी पहुँच जाए। तो हो सकता है कि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ी सी वो आ रही हो, चेंज भी आ रही हो, क्योंकि ये पावरफुल साउंड नहीं है उस तरह से प्रोड्यूस करने वाली, बल्कि ये तो बड़े लाइट वे में ये प्रोड्यूस करने वाली है ज़्यादातर जो है। तो दैट इज़ वाई, दैट इज़ यही वाली जो अभी बता जी, सेकंड वाली ओके, वी की तरह लिखा जाता है ना, जो वही साउंड है। ओके, सो ये इसमें वर्ड जो आप माइंड में रखेंगे वो आसानी से आप जहन में रख सकते हैं, फैन एंड वैन। ओके, फैन एंड वैन। और आपने ये डिफरेंस करना है, क्योंकि आमतौर पे जब लोग वैन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो अपर को लोअर लिप के साथ नहीं ज्वाइन कर रहे होते, बल्कि वो अपने लिप्स को क्या कर रहे थे, राउंड कर रहे होते हैं। ओके, वैन। ओके, तो वो जो साउंड है वो डब्ल्यू वाली, मीन डब्ल्यू वाली तो साउंड तो बेसिकली नहीं होगी, हम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो वो डिफरेंट साउंड है जिसको हम कहते हैं वेल, जो मछली है। ओके, WHALE, वेल। तो वहां पे आप अपने जो लिप्स हैं उनको आप राउंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने लिप्स को राउंड नहीं करेंगे। यहाँ पे तो आपने अपर टीथ को लोअर लिप के साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा। सेकेंड ग्रुप जो है वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। अमेरिकन इंग्लिश में तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ये बहुत मुश्किल है, और हम जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं बेसिकली। तो ये जो टू साउंड आपको नजर आ रही होंगी, इसको एक जो है वो थीटा साउंड इसको आप कह सकते हैं, मीन दिस लुक्स लाइक थीटा, नजर आ रही है आपको। ओके, एक थीटा की तरह नजर आ रही है, और एक को थीटा और दूसरे को पाई। पाई, ओके, इंग्लिश जो मैथमेटिक जो सिंबल होता है पाई का, आई थिंक सो, आई डोंट एग्जैक्टली नो। सो वो है पाई का। मैं इसको पाइन एप्पल साउंड भी कहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी पाइन एप्पल की तरह से भी दिखती है साउंड। तो थीटा और पाइन एप्पल आप इसको कह सकते हैं, या थीटा या पाई। ओके, इनको आप पाई तो शायद ये नहीं है, हाँ पाई से तो, पाई तो डिफरेंट होती है सिंबल। तो आप इस जी 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 बिल्कुल। ओके, वैसे ये पाई है नहीं पाई, क्योंकि मेरा ख्याल है डिफरेंट होती है। हाँ, आप इसको पाइन एप्पल साउंड से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती है ना, एक में है तो वो थीटा की तरह ही दिखती है। ओके, तो जो दूसरी है वो उसको आप पाइन एप्पल से मिलती जुलती है। अब इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये अब मैं बोलूंगा तो पता नहीं आप तक पहुंचेगी आवाज या नहीं पहुंचेगी। पहली वाली जो साउंड है, ओके, इसको इसको ऐसे बोलते हैं। ओके, इट्स कुछ आ रही है आवाज थोड़ी बहुत। बल्कि मैं इसको और आसान आपके लिए कर देता हूँ।
ये जो आप अरेबिक पढ़ते हैं ना, होली कुरान आप पढ़ रहे होते हैं या कोई भी अरेबिक जो साउंड्स हैं उनको आप देखते हैं, अरेबिक में ना एक से होती है, से 3 नुक्तों वाली, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ओके, तो वो जब आप ये कारी साहिबान के पास जाते हैं ना, तो वो बड़ी उसमें एहतियात बरत रहे होते हैं, क्योंकि यू नो कि अरेबिक में अगर साउंड चेंज होती है मीनिंग ही बदल जाता है। क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज है बड़ी सेंसिटिव, अपनी प्रोनाउंसिएशन के अतबार से बड़ी सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उसमें जब अब ज़रा सा आप उसको अगर गलत प्रोनाउंस करें तो वो सीन के साथ मिल जाती है। ओके, और अब देखें ना अरेबिक में किस तरह से डिफरेंसेस हैं। एक तो वो स्वा साउंड है, स्वाद है, स्वाद वाली, और एक सीन वाली है, और इसी तरह से थ। ओके, वो आप उसको मिल के, अगर वैसे तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं लाइक, ओके ओके, तो वो जो है वो जो साउंड है दैट इज बहुत मिलती जुलती है इस साउंड के साथ जो अरेबिक की। जैसे कि हम बोलते हैं ना, इन्ना आ तो ना कल कौसर, सर। ओके, तो वो सर नहीं है, तो इसी तरह से साउंड ये नहीं है, ये स, स, ओके, ये साउंड है। और सेकंड वाली ये है, वो भी थोड़ी सी टिपिकल है, बल्कि आप इसके लिए जो वर्ड है, मैंने कहा कि अमेरिकन में मुश्किल नहीं है ये, ब्रिटिश में मुश्किल है। अमेरिकन इंग्लिश क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो दैट इज़ वाई हम उसकी तरफ जा नहीं सकते। तो सेकंड जो है वो हमारे पास जो साउंड है वो आमतौर पे THIS। ओके, इसको आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, और दिस, ये साउंड ऐसे है, ज, ज, ओके। तो ये जो है वो हम इसको बोलते हुए ये ऐसे हम इसको बोलते हैं, लाइक दिस और दैट और दिस और दैट। ओके, वो जो साउंड है पहले वाली, उसको आप कैसे बोलेंगे, उसका बोलेंगे लाइक थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। ओके, ये है लाइक थ्रू, थ्रू। ओके, इस तरह की साउंड में आप उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और ये ऑब्वियसली इट नीड्स प्रैक्टिस। और ये अब इसमें क्या है कि आपकी जो, इसको हम डेंटल फ्रिकेटिव कहते हैं। ओके, हेयर द टंग इज नॉट प्लेस्ड बिटवीन द टीथ बट इनसाइड दम। ओके, इनसाइड दम, वो जो टीथ है ना उनके इनसाइड। ओके, डिस्क्रिप्शन में रिपीट कर देता हूँ, दीज आर डेंटल फ्रिकेटिव, हेयर द टंग इज नॉट प्लेस्ड बिटवीन द टीथ बट इनसाइड दम। तो कुछ तो ये कहते हैं कि बिटवीन द टीथ अप्लाई तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस। ओके, बट आई थिंक सो कि आप बिल्कुल उसके टच जाके करते हो बैक ऑफ द टीथ को, और फिर जो है वो आप इस साउंड को प्रोड्यूस करते हो। देयर एस्केप्स थ्रू द गैप बिटवीन द टंग एंड द टीथ। ओके, और वो गैप जो होता है उसमें, उससे वो एयर क्या होती है, एस्केप होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्रिकेटिव। ओके, तो दिस इज द सेकंड पेयर। जो ऊपर वाली जो आवाज़ है, जिसको आप अरेबिक के साथ हमने, जो थीटा हमें लग रही है जो आवाज़, वो ऑब्वियसली दैट इज अ वॉइसलेस। और सेकंड वाली जो वॉइस है, ऊपर वाली कोटिस यूजली है और नीचे वाली लिनस है। और इन साउंड्स को हम प्लेस के हवाले से क्या कहेंगे, डेंटल, डेंटल साउंड। जी, उसका साउंड ये है, ओके। और ये इसको आप माइंड में रख लें, वो जब आप बोलते हैं ना दिस, THIS, ओके, उस वो बोल बोल के वर्ड आप प्रैक्टिस करें इसकी, तो फिर बाकी वर्ड पे आप ऑटोमेटिकली, इवन THE, ओके, THE, ओके, तो उसमें भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे वाली जो साउंड्स हैं, टू जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है, ओके, दैट इज़ इजी, क्योंकि हमारे पास वो बेसिकली पाई जाती हैं हमारे पास, उर्दू में भी एज सच अवेलेबल है इन वन वे और द अदर। ओके, तो फर्स्ट वन इज, ओके, एंड सेकंड वन इज ओके। तो जी साउंड आप उसको बार्लोस के साथ आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो क्या है, जो फर्स्ट वन है, तो सिप एंड जिप, सिप एंड जिप। ओके, सो दीज आर एल्वियोलर फ्रिकेटिव्स। ये क्या है, एल्वियोलर है। एल्वियोलर क्यों है, क्योंकि एल्वियोलर रिज के साथ आपकी टंग जो है वो टच करे। दीज आर एल्वियोलर फ्रिकेटिव्स एंड देयर प्लेस इज at the alveolar ridge.
The air escapes through a narrow passage along the center of the tongue, and the sound is comparatively intense. Okay, so that is what we give the description. And okay, so they are comparatively easier sounds. And then we have another uh, another group. Okay, और इसमें भी ऊपर वाली जो साउंड है वो जो पहले हमने पढ़ी अभी, ऊपर वाली जो साउंड है दैट इज फोर्टिस एंड वॉइसलेस, एंड द सेकंड वन इज वॉइस्ड. ओके, नीचे वाली. And then we have the next one, that is another group, that is called sh. ये भी हमारे पास इंग्लिश सॉरी उर्दू में अवेलेबल है. ओके, एंड जो शीन की साउंड है. ओके, ओके. और सेकंड जो है वो ये भी कंपैरेटिवली इससे मिलती जुलती उर्दू में अवेलेबल है साउंड. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, लेकिन वो भी कम यूज होती है और ये भी कम यूज होती है साउंड. ये है ओके. तो मेजर, प्लेजर. ओके, साउंड जो है उर्दू में वो जो है ना, वो तकरीबन इससे मिलती जुलती जो साउंड है वो जो याला बारी है या पज मुर्दा है, पज मुर्दा. ओके, ओके. वो तो ये साउंड उसमें यूज नहीं होती. और इंग्लिश में बहुत कम वर्ड्स हैं जो इस साउंड को क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं. ओके, ट्रेजर, ट्रेजर, मेजर, प्लेजर. ओके, आमतौर पे वहाँ पे ये साउंड जो यूज होती है. और लास्ट जो साउंड है ये, जी, दिखने में कैसे हैं, आपके सामने नहीं है? क्यों? नहीं नहीं, हाँ, थ्री की तरह का है. नीचे वाला थ्री की तरह का है, और ऊपर वाला एफ डाल दें और दरमियान में उसके वो लाइन ना डालें तो वो वैसे बनती है तकरीबन. ठीक है, जो पहले वाला बता दिया ना, शीन की जो साउंड किसकी तरह बना हुआ है. वो एस तो सीन है ना, वो तो साउंड है, वो तो पहले गुजर चुके हैं, एलवेलर जिसको बोला है. ये तो जी सिप वाला. नहीं बनता है, ये साउंड है ही नहीं. ओके ओके, मैं बता देता हूँ आपको. आप जरा ना ओके, these sounds are ओके. सो यस, यहाँ पर आपकी कुछ कंफ्यूजन है. यहाँ पर जो है वो साउंड नहीं नज़र आ रहा, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसमें वो साउंड नहीं नज़र आ रहा. तो इसमें आप, जी मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आपने इसको, आप एफ डालते हैं ना, जो स्मॉल एफ होता है, ठीक है, स्मॉल एफ आप लिखते हैं ना, ऊपर से ऐसे ही शुरू करते हैं और नीचे तक आप उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं, और उसके दरमियान आप एक बार भी डाल रहे होते हैं. ओके, ऐसे क्रॉस करते हैं उसको आप, वो आप बार आपने नहीं डालनी, तो ये साउंड आपके पास आ जाएगी. और दूसरा ये कि मैं आपको जब ये लेक्चर भेजूंगा तो उस पर भी वो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी, बल्कि मैं लास्ट पे आपको पिक्चर भी भेज देता हूँ. ओके, सो लेट मी लुक एट इट. ओके, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. Yes, the picture, you can look at the picture. Okay, it is there with you. Okay, so got that in this way that you have a table in front of you. So these fricatives are called plato alveolar, which means
that their place of articulation is partly palatal and partly alveolar. Okay. So the tongue is in a position slightly further back than that is in z and is very common sound, and it is present in initial, middle and final position. Okay. बट जो ये साउंड है इट इज मोर लिमिटेड साउंड, ये पहले मैंने आपको बता दिया. सो इट इज फाउंड रेयरली इन इनिशियल पोजीशन एंड मोस्टली इन द मिडिल पोजीशन. ये जो साउंड है आपकी ये आम तौर पे इनिशियल पोजीशन पे नहीं होती, बल्कि ये कहाँ पर अक्कर होती है, ये आम तौर पर मिडिल पोजीशन में अक्कर होती है. तो और जो लास्ट आपके पास जो साउंड है वो है हा. हा. ओके. तो ये लास्ट जो साउंड है. अब ये जो हा साउंड है इसके बारे में मींस देयर इज अ कंफ्यूजन वेदर इट्स अ वॉल और कॉन्सोनेंट. लेकिन फोनोलॉजिकली अगर हम इसको देखें तो जो हा है वो इसको कॉन्सोनेंट ही कंसिडर किया जाता है. क्यों कॉन्सोनेंट कंसिडर किया जाता है इंग्लिश में इसको? क्योंकि आम तौर पर ये वॉल की जगह पे यूज नहीं होती, बल्कि इस ये जो साउंड है इसकी जो भी पोजीशन होती है इसमें इसके बाद वॉल यूज हो रहे होते हैं. जैसे कि आप अगर हम कहें हर, ओके, HER, हर, तो अगर तो ये वॉल की तरह हो तो वॉल की पोजीशन पे यूज हो ना, दो कॉन्सोनेंट को मिलाने के लिए आए. लेकिन ये कॉन्सोनेंट को मिलाने के लिए तो बहुत कम यूज होती है, ये तो वॉल की. इसी वजह से हम कहते हैं कि फोनोलॉजिकली हा इज अ कॉन्सोनेंट. ओके. इट इज यूजुअली फाउंड बिफोर वॉल्स. ओके. अगर मीन आपको वो पूछे कि हा जो है वो उसमें कोई खास तो रुकावट आप पैदा नहीं कर रहे होते जब आप उसको बोल रहे होते हैं, लेकिन फ्रिक्शन फिर भी इसमें पैदा हो रही होती है. ऐसे कि अगर आप हा 3-4 दफा इकट्ठा बोलें तो खांसी आना शुरू हो जाती है. ठीक है. तो इट मीन्स कि फ्रिक्शन क्या है, अवेलेबल है कहीं ना कहीं. वो फ्रिक्शन की वजह से भी हम इसको कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ रहे होते हैं. और दूसरा क्या है कि इट इज यूजुअली फाउंड बिफोर वॉल साउंड्स. और वॉल साउंड से जो पहले आता है वो बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्सोनेंट साउंड में ही क्या करता है, फॉल करता है. और क्योंकि इसमें वो फ्रिक्शन आप फील कर रहे होते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन वी जस्ट से ये जो साउंड है ये क्या है, ये फ्रिकेटिव है और कॉन्सोनेंट भी है. फ्रिकेटिव है और कॉन्सोनेंट भी है. और इसके साथ हम एक और पेयर पढ़ लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस. आगे है हमारे पास एफ्रिकेटिव्स. ओके. एफ्रिकेटिव्स, इसमें जो फ्रिकेटिव्स है उससे पहले AF आप लगा देंगे तो एफ्रिकेटिव्स बन जाएंगे आपके पास. ओके. और आपके सामने वो लिखे भी होंगे. एफ्रिकेटिव्स आर आल्सो कंटिन्यूट कॉन्सोनेंट्स बट they are more complex than fricatives. They begin as plosives and end as fricatives. Okay. तो अब इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, ये कॉम्बिनेशन है प्लोसिव्स और फ्रिकेटिव्स का. और क्या बनता है, एफ्रिकेटिव्स बनता है. मींस दे बिगिन लाइक प्लोसिव्स बट दे एंड लाइक फ्रिकेटिव्स. ओके. तो इसमें आपके पास जो है वो 2 साउंड्स हैं. ओके. नंबर 1 दैट इज च, च, एंड सेकेंड वन इज ज. ज जो आपके पास उर्दू में जो साउंड है ना जीम की, उससे ये मिलती जुलती साउंड है. ओके. सो च एंड ज. ch and j are only two affricative or affricate phonemes in English. As with the plosives and most of the fricatives, we have a fortis and lenis pair. The voicing characteristics are the same as for these other consonants. So उसमें जो फर्स्ट वाला है वो भी आपने पहला जो ग्रुप पढ़ा ना स्टार्ट में प्लोसिव्स का, तो इसमें भी जो पहले वाला है छ, छ, च भी आप इसको बोल सकते हैं और छ भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप फ बोल सकते हैं और प बोल सकते हैं. डिफाइन क्या करेगा कि आपने फ बोलना है या प बोलना है या छ बोलना है या च बोलना है, वो डिफाइन करेगा कि पोजीशन क्या है. इनिशियल पोजीशन में जी एफेक्टिव्स की, जी एफेक्टिव्स को आपने ड्रॉ कैसे करना है. ओके. इसमें जो आपने लास्ट साउंड देखी ना, एक तो जो पहले वाला है जिसको हम क्या कहते हैं, छ या च. ओके. वो जो पहले वाला है उसमें आप 2 साउंड्स को इकट्ठा लिख देंगे. एक तो साउंड जो अभी आपने देखी फ्रिकेटिव्स में,
और जो ट साउंड है, ट साउंड जो आपने पढ़ा प्लोसिव्स में, उन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, पहले लिखेंगे ट, साथ ही श लिख देंगे, तो ये आपके पास कौन सी साउंड बन जाएगी? च या छ, च या छ। ओके, च साउंड जो उर्दू में है ना, च। ओके, तो उसमें एस्पिरेशन और नॉन एस्पिरेशन वो दोनों उसमें हो सकती है, डिपेंड। और सेकंड वाला जो है उसमें ड, ड लिखेंगे प्लोसिव वाला, और य लिखेंगे ये वाला मैय वाला। ओके, ये फ्रिकेटिव्स वाला। तो इनको दोनों को इकट्ठा लिख देंगे तो वो कौन सी साउंड बन जाएगी? ज की साउंड बन जाएगी, ज। अब उसमें अगर ये स्टार्ट की पोजीशन में आएगा, जो पहले वाला जो साउंड है, तो वो एस्पिरेटेड होगा, एच वाला होगा। और अगर जो है वो एंड पे आएगा तो ऑब्वियसली उसमें वो एस्पिरेशन नहीं होगी। दैट इज व्हाई वी से कि जो इसमें दे बिगिन लाइक, मींस ch is slightly aspirated in the position where th, th, kha are aspirated, but not strongly enough for it is to be necessary for foreign learners to give much attention to। इनके हर जगह पे ये ऐसा जो है वो नहीं होगा इसके साथ। और फाइन, जैसे कि अगर आप बोलते हो ना, वर्ड बोलते हो चर्च, चर्च। ओके, तो पहले अब इसमें दो जगह पर कौन सी साउंड यूज हो रही है? यही साउंड यूज हो रही है। तो अब इनिशियल पोजीशन पे जब आ रही है ये साउंड, तो उसको आप कैसे बोल रहे हैं? इनिशियल पोजीशन पे आप इसको छ, उसमें एस्पिरेटेड साउंड है, ये एस्पिरेशन आप ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट पोजीशन पे जब आ रही है तो उसमें एस्पिरेशन आप ऐड नहीं करे, अब उसको च बोल रहे हो, चर्च। ओके, चर्च तो हम नहीं बोलते। ओके, चर्च, च। और वो वीक भी है कंपैरेटिवली, वो इतनी स्ट्रांग भी टुवर्ड द एंड वो इतनी स्ट्रांग आपके पास नहीं। ओके, जो सेकंड वाला आपके पास है, ओके, सो बेसिकली जो सेकंड वाला है वो तो ऑब्वियसली एस्पिरेटेड तो है ही नहीं, जिस तरह से आपके पास ब एस्पिरेटेड नहीं है, या बाकी जो वो है वो एस्पिरेटेड नहीं है। तो दैट इज वाई जो सेकंड वाला आपके पास है उसमें आपने को एस्पिरेटेड नहीं बोलना। ओके, और उसको आप जैसे कि आप बोलते हैं वर्ड जज। ओके, जज। ओके, व्हेन एवर यू आर जस्ट सेइंग जज, तो जज। ओके, सो ज साउंड, और इसमें दो जगह पे क्या है, ज साउंड आपके पास आ रही है। तो दैट इज वाई आप इसको इस तरह से, अब आपके पास जो हैं एफ्रिक्टिव्स, देखो देयर आर टू एफ्रिक्टिव्स। तो बेसिकली हमने आज कितने जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो पढ़े हैं? बेसिकली जो हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा कॉन्सोनेंट आया है? प्लोसिव्स आए हैं, और वो कितने हैं? दे आर 6। और then we just came to fricatives। okay, or so they are 9, they are 9, 6 and 9, they are 15। और उसके साथ आपने टू एफेक्टिव्स आपने पढ़े, जो एफेक्टिव्स हैं दे आर 2। ओके, सो एक्चुअली एज अ होल दे आर 17। 17 आपने आज कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं, और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, और उनको हम नेक्स्ट जो है वो उनको हम कल हम कंप्लीट कर देंगे। जो बाकी वाले कॉन्सोनेंट्स हैं हम उनको कल कंप्लीट करेंगे।